উপস্থিত সবাইকে জাতীয় যুব দিবসের আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আজ 12ই জানুয়ারি ভারত মাতার অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও বীর সন্তান স্বামী বিবেকানন্দের আজ 161তম জন্মজয়ন্তী। সারা দেশব্যাপী আজকের এই দিনটাকে জাতীয় যুব দিবস হিসেবে মহাসমারোহে উদযাপন করা হচ্ছে। তারই অংশস্বরূপ আজকে আমাদের বিদ্যালয়ে সামান্য আয়োজনের মাধ্যমে তার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা নিবেদন করব। আর তারই শুরু করব আমরা প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। আমি অধ্যক্ষ মহাশয়কে অনুরোধ করব প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করার জন্য। স্যার, অন্যান্য শিক্ষক ও শিক্ষিকাদের অনুরোধ করব আপনারা প্রদীপ প্রজ্বলনে এসে অংশগ্রহণ করবেন।
Respected Principal Sir, teachers, and my dear brothers and sisters, I, Samriddhi Das, standing in front of you all to give a speech on Swami Vivekananda on the auspicious occasion of his birthday, which is celebrated today, that is 12th January, as the 26th National Youth Day. Born as Narendranath Datta on 12th January 1863 in a Bengali Kayastha family of Calcutta, which is modern-day Kolkata, Swami Vivekananda, the son of Sri Vishwanath Datta and Bhuvaneshwari Devi, was a child of unquestioned expertise and intellectual capability who used to take grasp of all his school teachings at first sight. He was inclined towards spirituality from a very young age. He proudly upheld the greatness of Hinduism and taught the world its true essence of acceptance and tolerance. He was motivated by his guru, Sri Ramakrishna, who taught him that since all living things are manifestations of the Holy Soul, thus serving mankind is just like serving God. A figure of highest ideals and great thoughts, Swamiji was an inspiration for the youth of India. Through his teachings, he wanted to fill the young brains with the powers of self-realization, character formation, to recognize inner strength, service to others, an optimistic outlook, tireless efforts, and many more. He believed in peace, simplicity, generality, patience, and purity. Swamiji's speech at Parliament of World's Religions at Chicago in 1893 made him profoundly famous as he began his speech with Sisters and Brothers of America. It won many hearts. His teachings and philosophy are the guiding light for the youth of India and will also serve as a source of energy for the future generations. At the end, I would like to conclude my speech with one of Swamiji's most famous quote on life and death, which is that strength is life, weakness is death, expansion is life, contraction is death, and love is life, hatred is death. Thank you and have a nice day. নতুনভাবে দেখতে চেয়েছিলেন, আর এই নবভারত গঠনে তার যে কর্মোদ্যোগ এবং চিন্তাভাবনা সে সম্পর্কে জানবো আমরা প্রতীতি দাসের বক্তব্য থেকে। প্রতীতি দাসকে স্বাগতম। আমি প্রতীতি দাস, নবম শ্রেণীর ছাত্রী। আমরা সবাই জানি আজকে যুব দিবস, স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। তাই আমি স্বামী বিবেকানন্দের বিষয়ে একটি বক্তৃতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছি। আমার বিষয়টি হলো নবভারত গঠনে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান। পরাধীন ভারতবর্ষে স্বদেশবাসীকে সর্বপ্রথম আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে তোলার কাজে সফল হয়েছিলেন যিনি, মৃতপ্রায় একটি জাতির দেহে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন যিনি, তিনি হলেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ দেবের প্রিয়তম শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজির জাতীয়তাবাদী আদর্শ সতেজ চেতনা ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তী প্রজন্ম এই কর্মযোগী বীরের উদ্দাও আহ্বানে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত আপামর ভারতবাসী তাদের হারিয়ে যাওয়া চেতনা ফিরে পেয়েছিল। অরবিন্দের মতে বিবেকানন্দই আমাদের জাতীয় জীবনের ঘটন, কর্তা ও প্রধান নেতা। নবভারতের অন্যতম রূপকার স্বামীজির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেন, ভারতবর্ষকে জানতে হলে বিবেকানন্দকে পড়তে ও জানতে হবে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু নো ইন্ডিয়া, রিড বিবেকানন্দ। স্বামীজি এমন এক ভারতের স্বপ্ন দেখতেন যেখানে থাকবে না ক্ষুধার জন্য আর্তনাদ, স্বার্থের জন্য শোষণ, লোভের জন্য নিরীপির, গরিমার জন্য অবহেলা। নবভারতের রূপকার স্বামীজি চেয়েছিলেন নতুন ভারত গড়ে উঠবে প্রকৃত মানুষের নিয়ে। তিনি বলেন, নতুন ভারত বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটির বেদ করে, জেলে মাল্লা মুছি পেথরের ঝুপড়ির মধ্যে হতে, বেরুক মুদির দোকান থেকে, বোনাওলার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক জঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে। সতীশচন্দ্র বসুর মতে স্বামীজির স্বপ্ন ছিল জাগ্রত ভারত, সমুন্নত ভারত, একযোগে স্বাধীন ভারত। স্বামীজির ভারত সাধনায় ছিল স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর মুক্তি। ভারতবাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে স্বামীজি বলেন, সদর্পে বলো আমি ভারতবাসী, ভারতবাসী আমার ভাই। তিনি বলতেন, ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুসজ্জা, আমার যৌবনের উপবন, আমার ভারতৈক্যের বারাণসী। বলো ভাই, ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ। স্বামীজি ছিলেন যুব সমাজের আদর্শ। তিনি ভারতের স্বাধীনতা এবং নতুন ভারত গঠনের ক্ষেত্রে যুবশক্তির উপরই ভরসা করতেন। তিনি যুব সমাজকে লৌহ কঠিন পেশি, ইস্পতে কঠিন চরিত্র ও বজ্রদীপ্ত মনের অধিকারী হওয়ার আহ্বান জানান। তার বিশ্বাস ছিল 100 খাঁটি আদর্শবাদী যুবক মিলিত হলে ভারতের স্বাধীনতা অসম্ভাবী।
তিনি চেয়েছিলেন যুব সমাজকে আগুন চড়িয়ে দেবে হিমালয় থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত, উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত। স্বামী বিবেকানন্দ সমাজ প্রকৃত মানুষ তৈরির লক্ষ্য প্রতিষ্ঠা করেন। রামকৃষ্ণ মিশন 1897 খ্রিস্টাব্দে 5ই মে এই মিশনের উদ্দেশ্যে ধর্মীয় ঐক্য ও বৈদান্তিক আদর্শের বিশ্বব্যাপী প্রচার হলেও রামকৃষ্ণ মিশনের আসল লক্ষ্য হল মানবরূপী দেবতাদের সেবা করা, অর্থাৎ বিশ্বব্যাপী অবহেলিত, শেষিত, বঞ্চিত, নিপীড়িত, অত্যাচারিত, অসহায় ও নিঃস্ব মানুষগুলির পাশে দাঁড়ানো এবং তাদেরকে দরিদ্রের অভিশাপ থেকে মুক্তি করা। রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠার দ্বারা স্বামীজি জীব সেবাকেই জীবনের পরম ব্রতরূপে গ্রহণ করেছিলেন। জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর, এই ছিল তার মন্ত্র। স্বামীজি দেবাত্মার মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন মানবতাকে। তাই তার আদর্শ ও যাবতীয় ধ্যান ধারণা ঘিরে ছিল স্বদেশ ও স্বদেশবাসীর মুক্তি, আর তার সঙ্গে বিশ্বব্যাপী মানবতার মোক্ষ লাভ। আর জি প্রধানের মতে স্বামী বিবেকানন্দকে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের জনক বলা যেতে পারে। স্বামী বিবেকানন্দ মাইট ওয়েল বি কল্ড দ্য ফাদার অফ ইন্ডিয়ান ন্যাশনালিজম। স্বামীজিকে স্মরণ করে আজও প্রতি বছর 12ই জানুয়ারি স্বামীজির জন্মদিনকে যুব দিবস রূপে পালিত হয়। বিবেকানন্দ নতুন ভারত গঠনের যে স্বপ্ন দেখিয়ে গেছেন তাকে অনুসরণ করে পরবর্তীকালে ভারতের কর্ণধারার নতুন ভারত গঠনে প্রয়াসী হয়েছেন। তাই ফরাসি পণ্ডিত রোমালোল্লা বলেছেন, স্বামীজির সর্বজনীন আত্মা মানবতার পর্যবসিত হয়েছিল। হিজ ইউনিভার্সাল সোল ওয়াজ রোটেড ইন ইটস হিউম্যান সোল। ধন্যবাদ। অসংখ্য ধন্যবাদ প্রতিদিন। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, सम्मान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं रवि कुमार आप लोगों के समक्ष स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ बोलने के लिए यहाँ प्रस्तुत हुआ हूँ, जो कि इस प्रकार है। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर अरुणिम वो रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ज्ञान परंपरा के शिखर पुरुष श्री नरेंद्रनाथ दत्त की, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद के नाम से जानता है, जिन्होंने पश्चिमी देशों के बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित किया। वेदों के ज्ञाता और महान दार्शनिक स्वामी विवेकानंद जी ने भारत को विश्व गुरु के रूप में नई पहचान दिलाई। प्रत्येक वर्ष स्वामी जी के जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता कलकत्ता उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के पद पर कार्यरत थे तथा इनकी माता एक कुशल गृहिणी थी। इस बार हम आज के दिन स्वामी विवेकानंद जी की 160वीं जन्म जयंती मनाने जा रहे हैं। स्वामी विवेकानंद को देश के सबसे महान सामाजिक नेताओं में से एक माना जाता है। वे धर्म, दर्शन, वेद, साहित्य, पुराण, उपनिषदों आदि के ज्ञाता थे। कम उम्र में ही इनकी अध्यात्म में रुचि हो गई थी। पढ़ाई में अच्छे होने के बावजूद महज 25 वर्ष की उम्र में स्वामी विवेकानंद जी ने सांसारिक मोहमाया को त्याग कर सन्यासी बन गए। वे वेदांत के विख्यात व प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। इनके विचार आज के युग में भी काफी प्रासंगिक है। इनका मानना था कि किसी राष्ट्र के निर्माण के नींव उस देश के युवा ही होते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी जी को मानवता में निहित ईश्वर की सेवा करने की सलाह दी। इसके बाद स्वामी जी ने अपना पूरा जीवन ईश्वर की भक्ति और मानव जाति की सेवा में समर्पित कर दिया। इस दिशा में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस मठ की स्थापना की। 9 सितंबर 1883 को स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किए थे। यह वही दिन था जब पूरा विश्व भारत के एक युवा तपस्वी का मुरीद हो उठा था और भारत को अपने विश्व गुरु मानने के लिए मजबूर हो गया। यहाँ मौका था धर्म पर विचार विमर्श का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति सैकड़ों विद्वानों के बीच बैठे हुए स्वामी जी का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही थी। भारत को तीसरी दुनिया मानने वाले, सपेरों का देश कहने वाले, सूट बूट वाले अंग्रेज मन ही मन हंस रहे थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद सभा में निश्चिंत बैठे रहे और अलग अलग देशों से आए धर्मों के विद्वानों को एकाग्र होकर सुनते रहे।
कुछ ही देर बाद जब स्वामी जी को नाम भी पुकारा गया तो स्वामी जी बड़े सहज भाव से मंच की ओर बढ़े। पूरे विश्व की निगाहें मंच की ओर टिकी थी कि भारत क्या कहेगा। स्वामी जी मंच पर खड़े होकर चारों ओर देखने लगे। लोगों में उत्सुकता बढ़ने लगी कि भारत आखिर क्या बोलेगा। कुछ पल गुजरने के बाद स्वामी जी 5 शब्द बोले और इन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 5000 वर्षों के लिए सनातन संस्कृति का ध्वज गाड़ दिया। ये 5 शब्द पूरी दुनिया में विश्व बंधुत्व का स्वर संदेश बनकर गूंज उठे। शिकागो धर्म संसद में स्वामी जी की पहले 5 शब्द थी, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। आज हम ये तो जानते हैं कि अंडमान और निकोबार भारत का एक द्वीप समूह है, परंतु शायद हम ये नहीं जानते हैं कि जापान के उस वक्त के राष्ट्रपति स्वामी जी के आदर्श से प्रभावित होकर उन्हें यह भेंट स्वरूप दिया था। 4 जुलाई 1902 में स्वामी विवेकानंद जी की निधन के बाद भारत सरकार ने उनकी जन्म जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस में मनाने की घोषणा की। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। परम आदरणीय प्राचार्य महोदय, मेरे समस्त शिक्षक बंधुओं बहनों, मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं, आप सभी को सुप्रभात। जैसा कि स्वामी जी के बारे में हमारे छात्र छात्राओं ने बहुत ही अच्छा जो भी उनके जीवन के आदर्श थे उसको आपको बताया, लेकिन मैं उसको जितने भी आदर्श हैं उनके कुछ आप लोग के जीवन से जोड़ना चाहूँगा। स्वामी जी बात करते थे वसुधैव कुटुंबकम की। किसी में किसी तरीके का कोई भेदभाव नहीं, पूरे विश्व को अपना परिवार समझने जैसी हमारी भारतीय परंपरा रही है। तो सच में आपको अपने दिल में झांक के देखना होगा, खास तौर पे जो हमारे सीनियर हैं स्टूडेंट, उनको ये समझना होगा कि विश्व बंधुत्व की बात करते हैं हम, और अपने इस छोटे से नवोदय परिवार के अपने छोटे भाई बहनों को, उनकी दिक्कतों को क्या हम अपने स्तर पे सॉर्ट आउट नहीं कर सकते? आप देखो उसको, अपने नजर में झांको। हम किसी भी तरीके के भेदभाव को अस्वीकार करते हैं। स्वामी जी के बड़े बड़े आदर्शों की बात करते हैं। क्या आपको लगता है इतने आसानी से ये हमें मिल गया? इतना आसान नहीं था। शिकागो के धर्म सम्मेलन की बात करते हैं अगर हम, शिकागो का जो धर्म सम्मेलन था वहां पे स्वामी जी को कितनी हे दृष्टि से लोगों ने देखना स्टार्ट किया था। तो क्या उसका जवाब उन्होंने उस विष को पी के जो अमृत स्वरूप दिया था? तो ये हमारी परंपरा है। हमें किसी के गुस्से का जवाब गुस्से में नहीं देना है, बल्कि उसे प्रेम पूर्वक समझाना है, जो सबसे बड़ी सीख होगी आज के जमाने में। गुरु शिष्य परंपरा की बात करते हैं हम। गुरु शिष्य के सही रूप को देखना हो तो आपको देखना पड़ेगा स्वामी विवेकानंद जी का और रामकृष्ण परमहंस जी का। एक वो शिष्य से जो गुरु की तलाश में दुनिया में घूमने की क्षमता रखते थे, और आज हमारे नवोदय विद्यालय परिवार के छात्र हैं कि जिनको ढूंढने के लिए हमारे गुरु जी उनके हाउस में जाते हैं। क्या ये सही है? स्वामी जी कहते थे कि हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा संकल्प लेना चाहिए जो उसे जीवन में जरूर करना है, और पूरा जीवन उसी संकल्प के पीछे समर्पित कर देना चाहिए। मैं आप लोगों को बुरा भला नहीं कहने आया हूं, बल्कि बस ये कहना चाह रहा हूं कि आज वो पावन दिन है जिसमें आप सभी लोग ये संकल्प ले सकते हैं कि जीवन में हमें कुछ ना कुछ तो करना है और उसी के लिए पूरा जीवन समर्पित करना है। नहीं कुछ कर सकते तो कम से कम भेदभाव न करिए आप। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। हमें और कुछ ना आता हो पर प्यार निभाना आता है। ये भारतीय संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है। आदर की बात करते हैं, सम्मान की बात करते हैं अगर हम, तो जहां आज भी हम ममता के रूप में नदियों को माता कह के बुलाते हैं, तो ऐसी समृद्धशाली वैभवशाली परंपरा के द्योतक थे हमारे स्वामी विवेकानंद जी, जो इसको मानते थे और लोगों तक इसको पहुंचाने का कोशिश किया। शिकागो का धर्म सम्मेलन आपको पता है, ये वही तारीख है
11 सितंबर, जो ज्यादातर आज लोग याद करते हैं विश्व में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे आतंकवादी हमले के लिए, वही डेट है। और उसी डेट पे यह सम्मेलन भी हुआ था 1893 में। जो ये 5 शब्द आपने सुने, जैसा कि हमारे छात्र रवि ने बताया आपको, ये 5 शब्द पहले जब वो जाते हैं स्टेज पे स्वामी जी, तो इसको कहने के लिए पहले रुके रहते हैं 2 मिनट 3 मिनट, लोग उनको क्या क्या अवहेलना करते हैं। पर आपको पता है सम्मेलन के 1.5 महीने पहले से अमेरिका में पहुंच चुके थे स्वामी जी, और वहां पे लोगों का आदर सम्मान देख रहे थे। आदर क्या था उनका? जहां पे रंग के नाम पे भेदभाव था, काले होने का उनको तमगा मिला हुआ था, और इतना भेदभाव था कि क्या कहते थे उनको, यू ब्लैक इंडियन गो आउट, ऐसे करके संबोधित किया गया। लेकिन जब वो मंच पे जाते हैं, जब उन्हें मंच मिलता है, तो वो क्या कहते हैं? जो उसने 5 शब्द बताए, और 5000 साल तक वो पाश्चात्य संस्कृति जो अपने आप को बहुत अच्छा समझते थे, आज फॉलो कर रहे हैं और सदियों तक फॉलो करेंगे। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ये वो शब्द हैं जो द्योतक हैं वसुदैव कुटुंबकम के। हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति के द्योतक हैं, जो ये बताते हैं पूरी दुनिया को कि हम किसी में भेदभाव नहीं रखते। हमारे लिए सभी, पूरा विश्व भाई और बहन है, और जो हर संबोधन में हम लोग इस परंपरा को लेके चलते हैं। तो आज ये संकल्प लीजिए कि आज से आपको जीवन में कुछ ना कुछ तो करना है, और खास तौर पे अपनी छोटी सी शुरुआत अपने इसी नवोदय विद्यालय परिवार से स्टार्ट करिए। यही आग्रह है आप लोगों से, और इस राष्ट्रीय युवा दिवस के लिए सच में यही सबसे सही वक्त है। धन्यवाद। সংযোগ তৈরি না হয় তাহলে আমাদের এই সমস্ত অনুষ্ঠানের কোনো অর্থ থাকে না। এরপরে আমি ডেকে নিচ্ছি আমাদের স্কুলের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মহাশয় তার বক্তব্য উপস্থাপনের জন্য। স্যার। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, बहुत थकान हो गई आई थिंक खड़े खड़े, तो बहुत ज़्यादा जो है मैं आपको नहीं कुछ बताऊंगा। आपके टीचर्स ने, यादव जी ने तो बहुत ही बेहतरीन वक्तव्य दिया है और बहुत ही बेहतरीन बातें उन्होंने आपको बताई हैं। यदि जीवन में आप कुछ करना चाहते हैं, संकल्प लेते हैं, तो आज का दिन हमारे लिए, क्योंकि युवा दिवस इसका नाम है, और आप सभी जो हैं वो युवा हैं, आपके सामने एक बहुत बेहतरीन भविष्य जो है आपका इंतज़ार कर रहा है। डेफिनेटली जो है वो, उसके अलावा जो भी स्टूडेंट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, बहुत ही बेहतरीन उनका काम रहा। और फिर से जो है मैं आपको एक लाइन में आज इस राष्ट्रीय युवा दिवस के उपलक्ष्य में नवोदय परिवार के सभी छात्रों को, सभी स्टाफ सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। धन्यवाद। অসংখ্য ধন্যবাদ স্যার। স্বামীজি আসলে নবভারত গঠনের স্বপ্ন দেখেছিলেন, আর স্বামীজি মনে করতেন যে দেশ মানে শুধু দেশের মাটি নয়, দেশের মানুষই শেষ কথা। আর সেই জন্যই তিনি বলতেন, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সে বিচে ঈশ্বর। তো আমাদের সকলের উদ্দেশ্য হোক